نہیں، غلط طریقے پر یہ نظام نہیں تھا سود کا اور انٹرسٹ کا۔ آج تو جناب جو جتنا بڑا دلال ہو، جو جتنی بڑی دلالی کرتا ہو، جو جتنا بڑا بروکر بن جاتا ہو، اس کو اتنا بڑا مہان بزنس مین مانا جاتا۔ کامیاب نہیں ہو سکتے، وقتی طور پر تمہارے پاس اب لوگ بولتے ہیں مولانا آج کل کے زمانے میں ہم لوگ تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کی زندگی کے اندر خوبصورت، اگر ہم بڑا تاجر بننا چاہیں تو ہمیں شیئر مارکیٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا۔ وہاں نفٹی چلتی، نفٹی ایسے کوئی ورڈ ہے، نفٹی شیئر مارکیٹ میں، نفٹی کا گیان جس کو ہو گیا وہ شیئر مارکیٹ کا ہیرو بن جاتا۔ اب شیئر مارکیٹ کا حساب ہے، انٹرسٹ کا حساب کتاب ہے۔ تاجر میں کون کامیاب ہوتا ہے؟ تجارت میں آپ چھوٹا سا کوئی کاروبار کرتے ہیں، دکان کر کے بیٹھتے ہیں، اگر آپ کا نیچر بہتر ہے، آپ ہنس کر گاہک سے بات کرتے ہیں، آپ پوری ایمانداری سے سامان اگر دیتے ہیں تو سب آدمی وہیں پر پہنچے گا۔ یارے بڑا خوش مزاج آدمی ہے اور بہت ایمانداری سے سامان دیتا ہے، گڑبڑی نہیں کرتا۔ مٹھائی کی دکان پہ ہم اس دکان پہ جاتے ہیں جہاں پر پیور اور تازہ مٹھائی ملتی ہے، عموماً اس بات کا دھیان رکھتے ہیں، کیوں اس دکان میں جا کے لیں گے کیونکہ وہاں پر تازہ مٹھائی ملتی۔ چلو بھائی اسی دکان پہ چلو۔ بتاؤ دنیا والوں، یہ رول ماڈل اگر کوئی تاجر بننا چاہتا ہے، if anyone want to be a great businessman in their life، اپنی فیلڈ کے اندر، اپنی زندگی کے اندر بننا چاہتا ہے، they must to watch and they must to consider and they must to read and they must to look out۔ انہیں چاہیے کہ محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھے۔ کیا آپ علیہ السلام نے تجارت نہیں کیا؟ میڈیا والوں الزام مت لگانا، بدنام مت کرنا کہ تمہارے نبی نے صرف سجدہ کرنا سکھایا ہے، تمہارے نبی نے صرف کلمہ پڑھنا سکھایا ہے، تمہارے نبی نے صرف زکوٰۃ کی تاکید کی، تمہارے نبی نے صرف پردے کے اوپر پابندی لگائی، تمہارے نبی نے صرف 11 شادیاں کی، تمہارے نبی نے صرف ہاتھ میں تلوار لہرائے۔ یہ اعتراض مت کرنا تم نبی کے بارے میں نہیں جانتے، ہمارے نبی کی سیرت کے بارے میں نہیں جانتے۔ تمہیں پڑھنا پڑے گا ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اکابر کے سامنے میں، اب گھٹنے ٹیکنے ہوں گے، تب جا کر تمہیں پتا چلے گا کہ محمد رسول اللہ ہر فیلڈ کے بادشاہ تھے، ہر فیلڈ کے جس فیلڈ میں اتر جائے وہاں بادشاہ بن جاتی تھی، وہاں کامیاب بنتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام ایسے ہی نہیں تھے، آپ علیہ السلام دنیا کے کامیاب ترین تاجر میں سے ایک تاجر تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو امین کا خطاب کس نے دیا تھا؟ کیا صرف معاملات کرنے پر امانت دار تھے؟ نہیں، تجارت میں آپ اتنے امانت دار تھے۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے سب سے پہلا سفر کیا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، میں طالب علم ہوں، میری سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، کہیں نہ کہیں اشارہ ضرور ملتا ہے۔ 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا آپ تجارت کی غرض سے سفر کرنے چلے، اور بھی واقعات پیش آئے تو واپس کر دیے گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے امانت دار تھے کہ صائب بن قیس المخزومی نے ان کی پونجی ہوتی تھی، محمد رسول اللہ کام کرتے تھے، امانت داری کے ساتھ ان کے پروڈکٹ کو فروخت کرتے تھے، بیچتے تھے، اور اتنے امانت دار تھے کہ صائب بن قیس المخزومی نے نبی پاک علیہ السلام کا نام اسی دن سے الامین ملقب کیا، اور یوں کہا کہ محمد آپ امین ہیں، آپ امانت دار۔ تجارت کی وجہ سے ان کا نام امین پڑا تھا۔ پوچھ لیجئے، سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، وہی نہیں، آپ علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے۔ عرب کے محلے اور معاشرے کے اندر لوگ انتظار کرتے تھے، باہر سے آتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ، نبوت نہیں ملی ابھی، دیکھیے 15 سال 20 سال کی عمر ہے، 15 سال 20 سال کی عمر ہے، نبوت ابھی بہت باقی ہے۔ اس عمر میں بھی آپ علیہ السلام کی
उस माल का और उनके प्रोडक्ट का कि नहीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जो भी प्रोडक्ट लेकर आएगा हम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंसान झूठ नहीं बोलता, वो इंसान धोखा नहीं देता है। एक वाकया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 ऊंटनियां लेकर आए, 20 ऊंटनियां। संस्कृत में भी इसका तज़किरा है, वधूमंत दिविर्दश वर्षमहारथश देविज हेड़ती देविष्माना उपस पुरुष। हमारे उलमा बैठे हैं, थोड़ी सी तकलीफ होगी, संस्कृत है, नबी की सीरत मौजूद है। और मौलाना आसिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब में यह बात लिखी है कि संस्कृत में जो सीरत के ताल्लुक से बातें हैं, जहां पर रिसालत के ताल्लुक से बातें हैं, जहां पर अकाइद के ताल्लुक से बातें हैं, मुमकिन है कि वो किसी न किसी नबी का हो, उनकी जुबान का जो सीना बसीना नस्लन बाद नस्लिन मुंतकिल होकर आज वैदात की शक्ल में उनको बदलने की कोशिश की गई है, वहां पर मौजूद है, मुमकिन है, यकीन के साथ नहीं कहा। तो इसीलिए बहुत सारे मैंने जो मंत्र भी पढ़ा है शुरू के अंदर, उसका एक्सप्लेन करूंगा। कौन सा? उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मे मतम। संस्कृत पढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं, इस नाचीज पर विश्वास कीजिए, मैंने रटा नहीं है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। इसको कंप्लीटली मैंने इस लैंग्वेज को पढ़ा है। मैं बोल तो नहीं पाऊंगा मुकम्मल तौर पर जैसे उर्दू हिंदी बोल रहा हूं, बट यह है कि कम से कम 60% संस्कृत को मैं ग्रामेटिकली जानता हूं। उसको मैं आपको बता सकता हूं कि अरबी और संस्कृत में कितना डिफरेंट है। जमीन और आसमान का फर्क नहीं है, बहुत करीब है। जैसे हम लोग अरबी में बोलते हैं, अरबी में वाहिद तस्निया जमा संस्कृत में है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ऐसी वर्ड है एशह कहा, अरबी में बोलते हैं महाजा, ये क्या है? संस्कृत में एशह कहा, ये क्या है? इसमें इशारा मुअन्नस के लिए एशा, संस्कृत में हाजी लगाते हैं, मुज़क्कर के लिए हाजा लगा देते, जालिका लगा देते। संस्कृत में एशा बालिका, एशा बालिका, एश सा बालिका बैद के लिए, एशा बालिका करीब के लिए, रमा रमः भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, फाला फाला फालू, फाला सिंगल के लिए, वाहिद के लिए, फाला तस्निया दो के लिए, फालू जमा के लिए। फ़ेल माजी है। सेम संस्कृत में भविष्यति भविष्यन् भविष्यतः भविष्यन्ति। एक लंबा है, ग्रामर है, कायदा है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं आपको बता रहा था कि वधूमंत दिविर्दश वर्षमहारथश्च देव इजहेड़ति देव स्माना उपश पुरुष। वो महापुरुष ऐसा होगा कि वो 20 ऊंटनियां लेकर पहुंचेगा और उसको फरोख्त करेगा। आप पढ़िए अहादीस की किताब में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मौके पर 20 ऊंटनियां लेकर आए। 20 ऊंट का तज़किरा मिलता, ऊंटनी नहीं, लेकिन वहां पर ऊंटनी का तज़किरा। वधूमंत गा क्या बोलते हैं? प्रेग्नेंट ऊंटनियां। वधूमंत दिविर्दश वर्षमहारथश्च देव इजहेड़ति देविष्माना उपस पुरुष। अल्लाह के नबी 20 ऊंट लेकर आए और किसी वजह से आपको कोई काम आया, आप फौरन उठे और चले गए। आपका जो खादिम था, आपने अपने खादिम से यूं कहा कि बेचो, ये कीमत है, लेकिन ये ऊंट है, ये लंगड़ा है, इसका पेट टूटा हुआ है, इसकी कीमत इतनी रखना। तो आप अलैहिस्सलाम चले गए, वो खादिम भूल गया, फरोख्त कर दिया। एक साहिब आए, उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के ऊंट यही है। कहा हाँ, कहा मुझे फरोख्त कर
करो, सबको बराबर कीमत में बेच दिया। आप अलैहिस्सलाम आए, फरोख्त किए, जी कितनी कीमत हुई, रकम लिखाओ, हिसाब करके देखा है, कहा कि कम होनी चाहिए, 50,000 क्यों एक्स्ट्रा है, एग्जाम्पल क्यों ज्यादा है, उसकी आधी कीमत होनी चाहिए क्योंकि उसके पैर के अंदर फ्रैक्चर था, डिफॉल्ट था, वो लंगड़ा था, वो उसको कम कीमत में बेचना चाहिए था। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं भूल गया था, मुझे नहीं मालूम था, ए मोहम्मद, उन्होंने कहा कि बेवकूफ हो तुम, नाराज हुए आप, और कहा कि बैठो, बिठाया और लेकर गए ढूंढने के लिए। किधर से आया था, कहाँ का था, जी यमन का था। वो गए, एक दिन चलने के बाद उस काफले को पाया, पाने के बाद ये कहा कि ये ऊंट आपने किससे खरीदा, किसका ऊंट है? उन्होंने कहा कि हमने मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का ऊंट समझकर इसको खरीदा, वो थे नहीं, उनके गुलाम से खरीदा, यही गुलाम था। कहा कि इसमें से एक ऊंट लंगड़ा है, आप आधी कीमत ये वापस लीजिए, या एक काम कीजिए, वो ऊंट हमको दे दीजिए, बाकी 19 लेकर जाएं, उसके पैसे वापस आप अलैहिस्सलाम ने कर दिए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आपकी अमानत का तज़किरा, आपकी दयानतदारी का तज़किरा हमारे यमन में बहुत है, मैं भी गुलाम हूँ, मुझे मेरे मालिक ने भेजा है, मुझे मेरे रहबर ने भेजा है, और 3 दिन से मैं इस इंतजार में हूँ, इस मेले में, इस मार्केट में, कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का प्रोडक्ट कब आएगा, उनके ऊंट कब आएंगे कि मैं खरीदूं। अमानतदारी के साथ मैं 3 दिन से इंतजार में था। आज वो लोग तिजारत में महान माने जाते हैं, जो झूठ बोलता हो, जो बेईमानी करता हो, तिजारत एक रोल मॉडल आपको मिल सकता है नबी की जिंदगी में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सबक दिया, दुनिया वालों, कि अगर तुम दुकानदार हो, अगर तुम्हारे दुकान में कोई चीज खराब है तो ग्राहक को फौरन उसके बारे में वजाहत करो कि ये चीज, इसके अंदर ये कमी है, मैं इसकी इतनी कीमत लूंगा। लेकिन नहीं जनाब, आप सेफ की शॉप पे जाइए तो जो अंदर से खराब होगा उसको ऊपर से जनाब उसी के ऊपर लेबल लगा करके बेचते हैं। दुनिया के अंदर लोगों को धोखा दे सकते हो, मरने के बाद जब तुम्हारी वो पूरी मेमोरी चालू होगी, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला हसाहा, तुम्हारा एक एक अमल लोगों के सामने रखा जाएगा, तो ताजिरों उस वक्त कहां जाओगे? अल्लाह के नबी की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है, अगर हम तिजारत करें या कोई जमीन फरोख्त करते हैं या कोई दूसरी दुनियावी चीज हम फरोख्त करते हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं या कोई परचून की शॉप चलाते हैं या कपड़े की दुकान करते हैं या मोबाइल की दुकान करते हैं, तो अमानतदारी होनी चाहिए, दयानतदारी होनी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर हमें अमानतदारी मिलती। आज जो झूठ बोलता है, जो एक दूसरे की शेयर को खरीद कर दूसरों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर देता है, ये निजाम नबी के जमाने में नहीं था, बल्कि आप अमानत के तौर पर लोगों का दिल जीता था, आपने लोगों के कंपनियों को खरीद कर नहीं, गलत तरीके पर ये निजाम नहीं था, सूद का और इंटरेस्ट का। आज तो जनाब जो जितना बड़ा दलाल हो, जो जितनी बड़ी दलाली करता हो, जो जितना बड़ा ब्रोकर बन जाता हो, उसको उतना बड़ा महान बिजनेसमैन माना जाता। कामयाब नहीं हो सकते, वक्ती तौर पर तुम्हारे पास दौलत आ सकती है, देखो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में दिखाता है कि नहीं दिखाता। बड़ी बड़ी कंपनियों की दिवालियां निकल जाती, 9,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, 9 महीने लगते हैं उनके ओनर को जमीन सड़क पर आने के लिए। क्यों? क्योंकि गैर अमानत तौर पर बेईमानी करके वो उस जगह तक पहुंचते हैं। अमानतदारी के साथ कोई भी काम कीजिए, छोटा काम कीजिए, दिन में 100 रुपए कमाइए, 500 रुपए कमाइए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह उसी के अंदर आपको बरकत देगा और सुकून की जिंदगी देगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि भैया पैसे लो और वो ऊंट दो, आप देकर लेकर आ गए। वो आदमी कुछ नहीं बोला। उसका फायदा कब हुआ? जब आपको नबूवत मिली, जब नबूवत की खबर उसके मालिक और उस गुलाम को पहुंचती है, तो सबसे पहले गुलामों में, ताजिरों में वही शख्स चुपके से आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत का ऐलान करता मोहम्मद के सामने, ए मोहम्मद, आप जिस पैगाम का दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है, मैं आपके हाथ पर ईमान लाता हूं और मैं आपको सपोर्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते। आपके इस अमल से
آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی خراب چیز ہو بیچ دیتے ہیں، بائک ہو خراب ہو، انجن کمزور ہو، اور کسی کو 20-25 ہزار میں بیچ دیتے تو سمجھتے اچھا ہوا چلا گیا، وہ بے وقوف بن گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ we are intelligent, we are sharp mind because I solve out my bike to the other person، ہم اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ نہیں، محمد رسول اللہ کی زندگی ایسی نہیں۔ اگر تجارت ہم چاہتے ہیں، تاجر محمد کی زندگی میں بھی ہم کو وہ پیغام اور وہ مثال اور وہ اسباق ہمیں ملتے ہیں محمد رسول اللہ کی زندگی۔